बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our academic session 2020 and 21 with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Welcome to all students and parents in our academic session 2020 and 21. This is class 9 and period is biology, and I am your biology teacher. First of all, I would like to introduce your book. This is your book, which is Textbook of Biology for class 9 and 10 by Sindh Textbook Board, Jamshoro. And this is your copy. First of all, you have to maintain the cover page of your copy with name, class, section and roll number, and then you will maintain the next page by writing basic information, and then you will maintain the index page by writing first semester midterm has been start, and you will write here the topic which we are going to discuss by date and day. Now next, you are going to maintain the title page of first semester midterm has been completed, and then you will make the title page of chapter number 1 and also week number 1, and the name of chapter number 1 is Introduction to Biology. So we are going to discuss about biology. This is your diary. First of all, you have to fill the cover page of the diary with the basic information, and then you will write the timetable also here in the timetable portion, and then you will maintain the diary with proper manner. So we are going to discuss about biology. Before going to discuss about biology, we have to discuss about science. What is science? So science is the study of nature. Science में हम किसके बारे में study करते हैं? We study about nature in science, and the word science is composed of a Latin word which means to know. And there are many branches of science like biology, chemistry, physics, astronomy and geology, and other branches are also present, but we are going to discuss about biology. So what is biology? Biology is the branch of science in which we study about living organisms. Biology is the branch of science in which we study about living organism. The word biology is composed of two Greek words, bios and logos. Bios means life and logos means study. So it is the study of life. You can say that biology is the study of life. So biology is the branch of science in which we study about living organism, or you can say that biology is the branch of science in which we study about life. Now there are two main branches of biology. One is botany and other is zoology. These are two main branches of biology. One is botany and other is zoology. Botany, the word botany is derived from a Greek word botan, which means plant. So you can understand that botany is the branch of biology in which we study about plant. It is the scientific study of plants. Botany biology की branch है जिसमें हम plant के बारे में study करते हैं. And zoology word comes from the word zoo, and zoo means
animal, so it is the branch of biology in which we study about animals. It is the scientific study of animals. So biology is the branch of science in which we study about living organism, in which we study about life, and biology is further divided into two main branches. Botany, the word botany is derived from Greek word botan, which means plant, so it is the scientific study of plant. And next is zoology. Zoology word comes from zoo, and zoo means animal, so it is the scientific study of animal. One more branch is here, which is microbiology, and in microbiology we study about microorganisms. माइक्रोबायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर अनेबल टू सी बाय आवर नेकेड आईज एंड वी यूज माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम. उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है. वो तमाम ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, fungi, and the study of microorganism is called as microbiology. Microbiology is the branch of biology. So there are other branches of biology also present in your book, like first of all is histology, and histology is the branch of biology in which we study about the external morphology. First is morphology. First branch is morphology, and in morphology we study about the external structural characteristics of living organism. और living organisms कौन से हैं? Plant and animal. So we study about the external structural characteristics of plants and animals in the branch of morphology. मतलब कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व करते हैं. आपके सामने कोई एनिमल है या कोई प्लांट मौजूद है तो आप उसको बाहर से ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहले आप उसकी स्टडी एक्सटर्नली स्टार्ट करेंगे. लाइक प्लांट है तो आप प्लांट की हाइट देखेंगे कि टॉल है या शॉर्ट है, प्लांट का स्टेम थिक है या थिन है, उसकी लीव्स का पैटर्न क्या है, लीव्स का साइज क्या है, लीफ के अंदर वेन्स का पैटर्न क्या हैगा, फ्लावर किस कलर का है, फ्लावर के अंदर पेटल्स कितनी है, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, उसका कलर किस तरह से. या आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं. तो जो आप बाहर से स्टडी कर रहे हैं, जितने भी उसके बाहर से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं, उनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. सो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है क्या आ जाता है? प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, नाउ जब आपने बाहर से स्टडी कर लिया, एक्सटर्नली उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल है या प्लांट है, आपने उसको एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर लिया, उसको थॉरली स्टडी कर लिया, तमाम उसके पार्ट्स को देख लिया. तो अब हम क्या करेंगे? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेशन के बाद हम इंटरनल ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं. हम उसको एनिमल्स है या प्लांट है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी को कट करने के बाद उसको अंदर से स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं. लाइक अगर प्लांट है तो प्लांट में ऑर्गन्स तो मौजूद नहीं होते, प्लांट के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, हम टिश्यूज़ की अरेंजमेंट को स्टडी करेंगे. और इसी तरह से एनिमल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है. तो जो भी लिविंग जो ऑर्गन्स मौजूद हैं उनकी स्टडी करेंगे. ये हमने कैसे किया? जबकि हम उस ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कटिंग करने के बाद अंदर से स्टडी करते हैं. दिस स्टडी इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. Okay, morphology is the study of external structural characteristics of plants and animal, and anatomy is the branch of biology in which we study about the internal structural characteristics of plant and or animals. और प्लांट में हम क्या देखेंगे? हम प्लांट के अंदर टिश्यूज़ की अरेंजमेंट देखेंगे, जबकि एनिमल्स में जो है वो हम उसके ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे. ओके,
internal structural characteristics of living organism. एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स कट. हम इसको कट करके अंदर से स्टडी कर रहे हैं. पहले आपने मॉर्फोलॉजी स्टडी करी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको एक्सटर्नली ऑब्जर्व किया, उसकी स्टडी कर ली थॉरोली, फिर आपने उसको अंदर से कट करके उसकी स्टडी कर ली. इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी के करेक्टर स्टडी हो गई. एनाटॉमी भी आपने पढ़ ली. अब आप कहाँ पर जाएंगे? जब आपने कट करके देखा तो वहाँ ऑर्गन्स मौजूद थे, आपने उनको देख लिया किस तरह के ऑर्गन्स हैं, क्या शेप है, क्या साइज है, किस लोकेशन पर है, किस कलर का है, ये सारी आपने उसकी नॉलेज ले ली, वो सारा आपने स्टडी कर लिया. अब आप क्या करेंगे? उस ऑर्गन को कट करके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या मौजूद है. तो ऑर्गन किससे बनता है? ऑर्गन टिश्यूज से बनता है. टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. वो तमाम सेल जो जिनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. अब आपने बाहर से स्टडी करा, इंटरनल स्टडी कर ली. इंटरनल स्टडी के बाद अब आप ऑर्गन्स को कट करने के बाद आप क्या देखेंगे? उसके अंदर टिश्यूज मौजूद हैं. अब हम टिश्यू की स्टडी की तरफ जाएंगे. सो द स्टडी ऑफ टिश्यूज is called as histology. Histology is the branch of biology in which we study about tissues of living organism. जितने भी टिश्यूज़ मौजूद होंगे उनकी स्टडी करेंगे. किडनी के अंदर कैसे टिश्यूज़ हैं, लंग्स में कैसे टिश्यूज़ हैं, हार्ट के अंदर कैसे टिश्यूज़ मौजूद हैं, तो हम उसकी स्टडी करेंगे. अब ये टिश्यू को आप स्टडी करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे. ऐसे आप नेकेड आई से उसको नहीं स्टडी कर सकते, उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. सो हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, वी स्टडी अबाउट द टिश्यूज अंडर द माइक्रोस्कोप. हम क्या करते हैं? यहाँ पर स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप. ओके. मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी. फिर हम कहाँ तक पहुँच गए? टिश्यूज़ तक पहुँच गए. और आपको पता है टिश्यूज़ किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल से बने होते हैं. सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो अब जब हम टिश्यू तक आ गए हैं, टिश्यू को हमने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, उसकी प्रॉपर थॉरली स्टडी कर ली अंडर माइक्रोस्कोप. तो अब हमने देखा ये टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है? ये सेल से मिलकर बना है. सेल की स्टडी को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी. अब आप क्या करेंगे? सेल को स्टडी करेंगे और ये जो है स्टडी वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है. साइटोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी. ओके. साइटोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी. और साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, composition and function of cell and cell organelles. ओके. हम किस किस के बारे में स्टडी करेंगे साइटोलॉजी में? सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर है. कॉम्पोजिशन, किन किन केमिकल से मिलकर बना है? फैट से मिलकर बना है, लिपिड से मिलकर बना है, इसके अंदर फॉस्फेट मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाटर है, व्हाटएवर इज प्रेजेंट. आप तमाम केमिकल्स को देखेंगे, किन किन केमिकल से मिलकर ये सेल बना हुआ है, उसकी कॉम्पोजिशन स्टडी करेंगे और फिर उस सेल का फंक्शन स्टडी करेंगे. हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सही. तो अब सेल का फंक्शन भी देखेंगे, साथ साथ सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? सेल ऑर्गेनील्स होते हैं. जो सॉलिड पार्ट मौजूद है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सेल के अंदर, दैट आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनील्स. और सेल ऑर्गेनील्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, पहले भी आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में जब आप उन सब का भी स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन सब स्टडी कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं? साइटोलॉजी में कर रहे हैं. और सेल को भी आप अंडर माइक्रोस्कोप ही स्टडी करेंगे. माइक्रोस्कोप के बगैर आप सेल को नहीं देख सकते हैं. सो
Cytology is the branch of biology in which we study about the structure, composition and function of cell and cell organelles under microscope. Okay, now कितनी branches discuss हो चुकी हैं? Morphology, external structure characteristic, बाहर से आपने observe किया. Anatomy में आप क्या करेंगे? कट करके अंदर से study करेंगे. Then you will move towards tissues. आप organ या plant है तो उसमें tissues मौजूद हैं, stem में, root में, leaves में tissues की arrangement different होती है, उनको study करेंगे under microscope and then you will move towards the study of cell. Okay, and this branch is called as cytology. Next is ecology. Next branch is ecology. अच्छा, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शन पढ़ते हैं. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम यहाँ पर अपने जिस भी जगह पर सर्वाइव करते हैं, जो हमारे जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, हमारा इंटरेक्शन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी होता है, दूसरे ह्यूमन बींग से भी हमारा इंटरेक्शन है, प्लांट के साथ, एनिमल्स के साथ भी इंटरेक्शन है. इसी तरह से जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, इन सब से भी हमारा इंटरेक्शन है. हमारे लिए वाटर भी नेसेसरी है, हमारे लिए हवा भी ज़रूरी है, हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी चाहिए होता है. ये सब किस में आते हैं? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में आते हैं. जब हमारा इंटरेक्शन यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी है और उसका इंटरेक्शन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी है, इस स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी. सो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. जिस तरह का भी इंटरेक्शन है, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए, वो स्टडी हम कहाँ पर करेंगे? इकोलॉजी में करेंगे. ओके. Now, ecology is also called as environmental biology. Okay, we have discussed about 5 branches of biology and 2 main branches of biology, that are botany and zoology. So, it's about today's lecture. Now, you have to write down your diary. This is your homework. Memorize branches of biology from notes which is provided by school. जो आपको नोट्स मिले हैं आप उसमें से याद करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 3 and 4. ओके, आपने जितनी ब्रांचेस स्टडी कर ली हैं उनको अंडरस्टैंड कर लिया, आप इन्हें मेमोराइज कर लेंगे. और इसके अलावा आपको क्या करना है? अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी वर्क एंड यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर कॉपी वर्क बाय द कंटेंट सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 41 and 42. Okay, we will discuss the remaining branches of biology in next video. Till Allah.